Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the English lecture of class 7. How are you, students? I hope you all are fine and I hope you all are enjoying your winter vacations. Please stay safe at your home. Don't go out. Keep yourself warm and enjoy your holidays. But don't forget to study on daily basis. Give time to each and every subject. And also, I told you in class also that you all should improve your reading and writing. Not all of you, but most of the students, I'm not satisfied with your handwriting. I told you that you should buy an English handwriting practice बुक जिसमें डॉट्स से कुछ सेंटेंसेस या वर्ड्स लिखे हुए होते हैं और उनको आप ट्रेस करके जो है पहले ट्रेस करें और उसके बाद जो है प्रैक्टिस के लिए पेज भी दिया होता है तो उसमें आप प्रैक्टिस करें. इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग. और रीडिंग भी जो है डेली बेसिस पे आप करें. एटलीस्ट रीड एवरी चैप्टर ट्वाइस अ डे. बेशक साइंस का हो या जोग्राफी का हो. In this way, you can improve your reading also. So as you all remember that last week we studied unit number 5 and the name of this unit was The Legend of Odysseus and the Cyclops. The story was about Greek myths and legends and people in this story people tried to find out reasons for why certain things happen, why the sun sets or rises, whether moon revolves around the earth or earth revolves around the moon, or what are earthquakes and why they are caused. So जो ग्रीक की जो अपनी स्टोरीज हैं या कहानियाँ हैं, जो मिथ्स हैं, जो अकीदे हैं, उनके ऊपर ये एक स्टोरी है. And particularly the story is about a Greek legend that is Odysseus. और last week जो है we completed our words meanings and word sentences. So today we are going to do question answers. And I want कि अगर आपने जिस words meanings किए हैं और लास्ट वीक मैंने आपको बताया भी था कि अगर वर्ड्स मीनिंग्स आप एक पेज पे कर रहे हैं तो सेंटेंसेस नेक्स्ट पेज पे करें. एक ही पेज पे वो ना उसको करें मिक्सअप. और क्वेश्चन आंसर जो है वो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पे करें. बट डोंट फॉरगेट टू राइट द डेट एंड द डे. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दीज क्वेश्चंस आर मेंशन इन योर बुक ऑल्सो. वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस पिक किए हैं. Question number 1 is, what was the belief of ancient Greeks about earthquakes? Answer is, ancient Greeks believed that earthquakes were caused when Atlas, the god who held the earth on his shoulder, got tired and shifted the earth from one shoulder to the other. उनका मानना था कि जब उनका ये खुदा जिसका नाम एटलस था, जब वो थक जाता है कंधे पर अपने हाथों पे ज़मीन को उठाया के या जब वो एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर पे शिफ्ट करता है ज़मीन को तो तब जो है ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक आता है. ओके, आफ्टर राइटिंग एवरी आंसर डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइन. देन स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ऊपर भी आप स्टार्टिंग में मेंशन करेंगे यूनिट नंबर 5 और फिर एक लाइन छोड़ के यू विल राइट द नेम ऑफ द यूनिट एंड देन यू विल स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर्स. आप लिख सकते हैं कि आंसर दीज या इस तरह क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वर मिथ्स एंड लेजेंड्स फॉर्म्ड. यानी कि ये कहानियाँ और ये किस्से ये कैसे बनते थे, किस तरह से वजूद में आते थे. इसका आंसर है, myths and legends were formed because people tried to find out reasons for why certain things happened. लोग जो हैं ये जानने की कोशिश करते थे कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई होगी, कैसे हुई होगी, कब हुई होगी. तो उसकी वजह से वो कहानियाँ बनाते थे और फिर जो है एट लास्ट ये
किस्से कहानियाँ वजूद में आए। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक साइक्लॉप्स एग्जिस्ट? सपोर्ट योर आंसर विथ रीज़न। आई डोंट थिंक साइक्लॉप्स एग्जिस्ट। बीइंग अ मुस्लिम हमने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सुना कि कोई ऐसे क्रिएचर आया हो किसी सदी में जिनकी एक आँख हो, जिन हो। तो हम बीइंग अ मुस्लिम इस पे बिलीव नहीं हमने किया कर सकते। सो वी आर गोइंग टू राइट, आई डोंट थिंक साइक्लॉप्स एग्जिस्ट। A huge creature with one eye cannot exist. We have also never heard of such thing in our religion. After writing this answer, leave one line. Then you will start question number 4. Why was the giant Polyphemus not helped by other Cyclops? When Polyphemus shouted painfully and he asked for help, the other Cyclops asked him that who was hurting him. He replied that nobody was hurting me. The other Cyclops replied that if nobody was hurting him, then he didn't need their help. ठीक है, इसमें ये है कि जब आपको याद होगा कि जब वो पुकार रहा होता है, जब वो तलवार मारता है, उसकी आँख पे एरो मारता है ओडिसियस, तो वो काफ़ी दर्द में होता है और वो अपने साथियों को बुलाता है, आवाज़ें देता है। तो वो पूछते हैं उसके साथियों से कि तुम्हें कौन हर्ट कर रहा है। तो उसका रिप्लाई ये होता है कि मुझे नोबडी जो है हर्ट कर रहा है। वो नोबडी इसलिए कहता है क्योंकि ओडिसियस से जब उसने नाम पूछा होता है तो ओडिसियस ने अपना नाम नहीं बताया होता। ओडिसियस ने बोला होता है कि मेरा नाम है नोबडी। तो जब वो बार बार बोलता है कि नोबडी इज़ हर्टिंग मी, तो दूसरे जो साइक्लॉप्स हैं वो ये समझते हैं कि शायद इसको जब कोई हर्ट नहीं कर रहा तो फिर ये हमें क्यों बुला रहा है। तो वो कह रहा है जब तुम्हें कहते हैं कि जब तुम्हें कोई हर्ट ही नहीं कर रहा, व्हेन नोबडी इज़ हर्टिंग यू, तो यू डोंट नीड आवर हेल्प, तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं आ सकते, हम क्यों आए। हाउ वॉज किंग ओडिसियस एबल टू एस्केप फ्रॉम पॉलीफेमस? King Odysseus and his men hid themselves in the thick fleece of the giant sheep. Polyphemus moved the stone from the mouth of the cave and hurled the sheep out under which King Odysseus and his men were hiding. In this way, King was able to escape from Polyphemus. यानी कि किंग ओडिसियस किस तरह काबिल हुआ कि वो उस गार में से जहाँ पॉलीफेमस था वहाँ से निकल जाए। आपको याद होगा स्टोरी में मेंशन था कि किंग ने अपने आप को शीप की बेली के नीचे छुपा लिया था और उसको पकड़ लिया था। तो जब पॉलीफेमस ने शीप को केव से धक्का मार के बाहर निकाला तो किंग वॉज ऑल्सो एबल टू एस्केप फ्रॉम देयर। What does Odysseus symbolize in Greek legend? Odysseus in Greek legend represents the symbol of determination, search for fulfillment and self-knowledge. Determination यानी will power, टाइयून जिसको कहते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। प्लीज़ ट्राई टू डू योर वर्क नीटली। और इससे पहले कि मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा सा एक रीकैप दे देती हूँ इस यूनिट का कि क्या था कि दिस स्टोरी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, दिस स्टोरी इज़ अबाउट ग्रीक माइथोलॉजीज़ एंड लेजेंड्स। यानी कि जो ग्रीस इज़ अ कंट्री इन यूरोप और वहाँ के जो लोगों को हैं वो हम ग्रीक कहते हैं। तो ये उनके बारे में है जो कि बहुत ग्रीक लेजेंड्स और उनकी जो किस्से कहानियाँ जो कि अब पूरी दुनिया में बहुत मशहूर भी हैं और काफ़ी पुराने भी हो चुके हैं। और उसमें लोग किस्से कहानियाँ, ये लेजेंड्स और माइथोलॉजी इसलिए बनी क्योंकि लोग जो हैं कुछ चीज़ें जानना चाहते थे कि जैसे कि सन जो है वो क्यों तलू होता है, क्यों ग़रूब होता है, ज़लज़ले जो हैं वो क्यों आते हैं। तो उसके बाद जो इन चीज़ों का जवाब देने के लिए वो अपने पास से जो है कुछ किस्से कहानियाँ घड़ लेते थे, बना लेते थे, जो कि बाद में मशहूर हो गई।
सो ये जो स्टोरी है दिस इज़ अबाउट ओडिसियस, और इसके बारे में ये है कि ही वॉज अ ग्रीक किंग ऑफ इथिका. After a great war, he was sailing back home with his men. One day he sailed to an island. The island was occupied by one-eyed giants. These giants were carnivorous and were called cyclops. एक दफ़ा क्या होता है कि वो जंग के बाद जो है अपने बंदों के साथ वापस जा रहा होता है आइलैंड में. तो वो ऐसे आइलैंड में उसका गुज़र होता है, ऐसे आइलैंड में उसका गुज़र होता है जहाँ पर वन आइड जाइंट्स रहते होते हैं जो कि गोश्तखोर होते हैं, यानी कि कार्निवोरस होते हैं, और उनको साइक्लॉप्स कहा जाता है. तो वो जो है अपने लोगों के साथ जो है वो आइलैंड की ब्यूटी को एंजॉय कर रहा होता है, और इतने में शाम हो जाती है. जब शाम हो जाती है तो वो अपने पनाह के लिए किसी केव में चले जाते हैं. एंड दैट केव बिलोंग टू एन ओल्ड साइक्लॉप कॉल्ड पॉलीफेमस. वो जो गार होता है यानी केव होता है वो एक साइक्लॉप जिसका होता है उसका नाम होता है पॉलीफेमस. और एट ट्वाइलाइट पॉलीफेमस रिटर्न टू द केव विथ हिज फ्लॉक ऑफ शीप. When Polyphemus, along with his sheep, were inside the cave, he blocked the mouth of the cave with a stone. Odysseus and his men were trapped inside it, and Polyphemus was very happy to see men inside his cave. अब Polyphemus जब अपने केव में वापस आता है तो वो बहुत खुश होता है अपने कि मेरे केव में इतने सारे लोग हैं. तो वो तो कहता है कि मेरा तो आज डिनर का बंदोबस्त हो गया है. और ही गॉट होल्ड ऑफ 2 of the men and ate them up as dinner. और उसके बाद वो सो जाता है. तो जब वो सुबह उठता है तो वो फिर दोबारा देखता है कि वहाँ पर लोग हैं, और वो उनमें से फिर जो है 2 लोग खा लेता है अपने ब्रेकफास्ट के लिए, और फिर वो जो है गार से बाहर निकल जाता है. अब वो रात को लोग केव से बाहर भी नहीं निकल पाते क्योंकि पॉलीफेमस जो है वो केव को बंद कर देता है एक बहुत ही भारी पत्थर रख के उसका. तो वो वहाँ पे रास्ता जाने का जो है वो बंद हो जाता है. But before he left, he did not forget to block the mouth of the cave with a huge stone. लेकिन जब वो सुबह जब बाहर जाने लगता है तो वो दोबारा से क्या करता है कि वो ह्यूज स्टोन यानी कि बहुत बड़े स्टोन से रास्ता जो है ब्लॉक कर देता है केव से बाहर जाने का. अब किंग ओडिसियस एंड हिज men tried very hard to move the stone, but it was all in vain. जो किंग होता है उसके बंदे बहुत कोशिश करते हैं कि वो जो पत्थर है उसको उठा सकें, बट उनकी जो ये कोशिश होती है वो बिल्कुल रायगा जाती है, बेकार चली जाती है. उसकी वजह ये होती है कि स्टोन जो है वो बहुत ही भारी होता है और इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर दोज मैन टू मूव इट. तो ओडिसियस जो है उसको एक प्लान करता है वो, और वो वहाँ पर उसको एक जैतून की यानी कि ऑलिव ट्री की एक ब्रांच मिलती है, और वो उसको जो है वो बना लेता है अपना तीर. और जैसे ही पॉलीफेमस रात को आता है वो उसको पहले थोड़ी सी वाइन देता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा जब ड्रंक हो जाता है पॉलीफेमस तो वो जो है वो जो उसने ऑलिव ट्री की शाख होती है, ब्रांच होती है, वो उसकी आँख पे मार देता है. तो उसकी एक ही आँख होती है और उससे भी फिर उसको जब वो आँख में उसकी लग जाती है तो उसको फिर दोबारा से नज़र नहीं आ रहा होता. और फिर वो बहुत पेन में होता है, वो बहुत शाउट करता है, अपने आदमियों को बुलाता है उसके, और बट उसके आदमी उससे पूछते हैं कि हु इज़ हर्टिंग यू. और वो आगे से ये बोलता है कि नोबडी इज़ हर्टिंग मी. क्यों? क्योंकि वो जब ड्रंक होता है तो वो पूछता है ओडिसियस से उसका नाम, तो ओडिसियस उसको अपना नाम नहीं बताता, वो कहता है पीपल कॉल मी नोबडी, यानी कि लोग मुझे नोबडी कहते हैं. तो वो पॉलीफेमस जो है अपने लोगों को बताता है कि भाई नोबडी इज़ हर्टिंग मी. बट तो उसके बंदों को समझ ही नहीं आता कि नोबडी कोई बंदे का नाम है. वो समझते हैं नोबडी का मतलब यही है कि उसको कोई तंग नहीं कर रहा. तो वो उसे कहते हैं कि जब तुम्हें कोई तंग ही नहीं कर रहा तो तुम हमें क्यों बुला रहे हो, यू डोंट नीड आवर हेल्प. So in the meanwhile, King Odysseus and his men hid themselves in thick fleece of the giant sheep. Polyphemus tried to find the men in the cave. अब जो किंग है उसके जो लोग होते हैं वो
जो उसकी शीप्स होती हैं, जो वो सब उसके साथ ही आती हैं, उसके बैली के नीचे अपने आप को छुपा लेते हैं। और वो जो पॉलीफेमस होता है उसको नज़र कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी वो ढूंढ रहा होता है कि कोई बंदा मुझे मिले जिसको मैं खा सकूं। He did not think of feeling under the bellies of the sheep and thought that the men had managed to escape. He moved the stone from the mouth of the cave and hurled the sheep out, under which King Odysseus and his men were hiding. तो किंग जो होता है उसके जो पॉलीफेमस होता है उसको बिल्कुल माइंड में ही नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है कि लोगों यहाँ पे जो बंदे आए थे उन्होंने अपने आप को शीप की बैली के नीचे छुपाया हुआ हो। तो वो क्या करता है, वो जो स्टोन होता है जिससे वो रास्ता ब्लॉक करता है केव से बाहर जाने का, उसको उठाता है और जो शीप होती है उनको भी धक्का दे के बाहर थ्रो कर देता है। तो इन दिस वे जो है वो किंग ओडिसियस जो है ही मैनेज टू एस्केप। वहाँ वो जब शीप बाहर आते हैं तो ऑब्वियसली किंग और उसके जो साथी होते हैं वो भी साथ में आ जाते हैं। एंड व्हेन द शीप रीच द मेडो द किंग एंड हिज मेन यूनाइटेड देमसेल्व्स। जब वो शीप जो हैं वो वहाँ से निकल के किसी ग्रास लैंड में यानी खेत में या ऐसी जगह जहाँ पे घास होती है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तब वो जो है किंग ओडिसियस और उसके बंदे जो हैं वो दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से वो फिर मैनेज करते हैं कि वो उस आइलैंड से निकल जाएं एंड दे वंस अगेन कंटिन्यूड द जर्नी बैक होम। तो ये इसकी स्टोरी थी। लास्ट वीक भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको याद होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही डिफरेंट सी है, काफ़ी पुरानी स्टोरी बट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप आपने ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो नोट डाउन कर लिए होंगे। So the next topic that we are going to do is the future perfect tense. इसकी एक्सरसाइज है इसी चैप्टर के एंड पे जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें ही मेरी बुक में इट्स ऑन पेज नंबर 37 और इसकी डेफिनेशन भी जो है वो बुक में ही लिखी हुई है। सबसे पहले तो लेट मी टेल यू कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज फॉर इंडिकेटिंग दोज एक्शंस दैट वी थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर टेंस मतलब कि वो चीज़ें जो आने वाले कल में होंगी, ठीक है ना, जो कल भी होंगी, परसों होंगी या 2 वीक्स बाद होंगी या नेक्स्ट ईयर होंगी। एनीथिंग दैट इज येट टू हैपन, ठीक है ना, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम किसको कहते हैं? The future perfect tense expresses an action that will occur in the future before another action or time in the future. यानी कि future perfect tense refers to an action that is not yet completed but will be completed at some specific time in the future. यानी ऐसा काम जो अभी complete नहीं हुआ, future में complete नहीं हुआ, but किसी भी टाइम पे स्पेसिफिक टाइम पे फ्यूचर में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है ना। एज यू ऑल नो कि फ्यूचर टेंस में हम हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में हम हमेशा विल यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैंने कह रहा हो कि हम कल लाहौर जाएंगे तो मैं इसको क्या बोलूँगी इंग्लिश में? आई शैल या आई विल गो टू लाहौर टुमारो। अब ये बात कीप दिस थिंग इन माइंड कि आई के साथ और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, बट और जो बाकी प्रोनाउंस हैं लाइक यू, दे, शी, ही, इनके साथ हम विल यूज़ करते हैं। बट दिस इज़ नॉट फाइनल कि हमने आई के साथ या वी के साथ शैल ही यूज़ करना है। हम आई के साथ या वी के साथ विल भी यूज़ करते हैं, बिकॉज जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें मोस्टली विल ही यूज़ हो रहा है, शैल कम ही यूज़ होता है। तो अगर आप फिर भी इवन आई के साथ प्रोनाउन आई के साथ शैल यूज़ करते हैं तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि प्रोनाउन सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, एज यू नो, सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, द डूअर, यानी कि जो काम कर रहा है। आई, यू, ही, विल, दे, शी, ये सब सब्जेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको ये बात याद रखनी है कि सब्जेक्ट के साथ यू विल ऑलवेज यूज विल हैव, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि विल तो हम यूज़ करते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए,
तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए आपने विल के साथ क्या ऐड करना है, हैव, ठीक है ना। और उसके साथ आपने आई, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव आएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल आएगा। आई विल हैव ईटन, ईटन किसकी थर्ड फॉर्म है, वर्ब ईट का। ईट की सेकेंड फॉर्म क्या है, एट। कीप दिस थिंग इन माइंड कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, और सब्जेक्ट के बाद विल हैव आएगा, उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर होगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है। आई विल हैव ईटन बाय 9:30, ठीक है। यू विल हैव ईटन बाय 9:30. He will have eaten by 9:30. So keep this thing in mind whenever we are using future perfect tense. हम subject के बाद हमेशा will have use करेंगे और verb की third form यूज़ करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, इसीलिए मैंने ये एक प्रॉपर आपको ये एक चार्ट है, जिससे देख के आपको, अगर आप इसको ज़रा देख लें और समझ लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि फ्यूचर, इट इज़ वेरी सिंपल कि फ्यूचर का मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर जो है उसमें हमेशा हम विल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोनाउन के साथ हम विल यूज़ कर रहे हैं, बट अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है which refers to an action that is not yet completed but will be completed at some specific time in the future. तो will के बाद we will use have and then third form of the verb. ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप इसको भी देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है एग्जाम्पल है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, और जो थर्ड है वो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में आई टोल्ड यू कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि एस मतलब सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव और प्लस पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम वी ऑल्सो कॉल इट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद आएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जो भी बाकी सेंटेंस है, ठीक है। तो ये आपने याद करने की एक्सरसाइज, जब भी अभी हम जो एक्सरसाइज करेंगे आपने सब्जेक्ट के बाद विल हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें स्पेसिफिक टाइम भी मेंशन है। अब इसी सेंटेंस को, ये है पॉजिटिव सेंटेंस, अब इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव में क्या होता है, नॉट यूज़ होता है। वो नॉट हम कब यूज़ करेंगे, यहाँ पर विल के बाद यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल और फिर बाकी सेंटेंस। हैव के बाद नॉट यूज़ नहीं होगा, नॉट यूज़ होगा विल के बाद। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस और आगे जो भी सेंटेंस है, जैसे ही विल नॉट हैव डन इट बाय दिस इवनिंग। अब ये है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हमें कैसे पता चल रहा है, बिकॉज नॉट यूज हो रहा है। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, ही विल नॉट हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, इसका नेगेटिव है। अब इसी सेंटेंस को हमने अगर क्वेश्चन बनाना हो यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो, तब हम क्या करेंगे, तब क्या सब्जेक्ट पहले आएगा, नो। तब क्या पहले आएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन विथ विल। बट ऐसा नहीं है कि ऑल क्वेश्चंस विल स्टार्ट विथ विल। हो सकता है एक्सरसाइज में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हों जो वेयर से स्टार्ट हो रही हैं या हाउ से स्टार्ट हो रही हैं, उनका या दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, उसमें क्या होगा कि हम जो क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद विल लगाएंगे। बट मोस्टली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखना होता है तो उसमें वी स्टार्ट द सेंटेंस विथ विल, और विल के बाद आता है सब्जेक्ट प्लस हैव
प्लस पास्ट पार्टिसिपल और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. लेट मी रिपीट इट अगेन. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल. अभी आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट वी आर नॉट स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन विथ विल हैव. विल पहले आ रहा है, लेकिन अभी विल के साथ हैव नहीं आ रहा. अभी विल के बाद आ रहा है पहले सब्जेक्ट, फिर हैव विल कम एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इसी तरह नॉट में जो है सब्जेक्ट के बाद विल प्लस नॉट देन हैव. आई होप ये आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा. आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा. और कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आपने अगर नेगेटिव सेंटेंस में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगी, और अगर इसको आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे लिखेंगे आप. ये एक और चार्ट है, इसको भी अगर आप देख लें. और चूंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो अगर आप नोट डाउन नहीं भी कर सकती हैं तो यू कैन जस्ट सेव इट इन योर मोबाइल फ़ोन. ये चीज़ें, ये चार्ट जो है ये आपको कॉपी पे नोट डाउन नहीं करना. ये जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ, समझने के लिए है, क्योंकि हमने वी हैव टू डू एन एक्सरसाइज ऑन पेज 37 यूनिट 5 में ही. एट द एंड ऑफ द यूनिट ये एक्सरसाइज ए है पेज 37 पे. अभी हम उसको करेंगे, बट उससे पहले यू शुड हैव अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. जैसे कि मैंने आई एक्सप्लेन यू अर्लियर ऑल्सो इन आर प्रीवियस स्लाइड के पॉजिटिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वी थ्री मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. इसी तरह जो नेगेटिव होगा उसमें आप चाहे जो भी प्रोनाउन या सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, आई है, यू है, ही है, शी है, इट है, वी है, यू है, दे है. उसके बाद होगा विल नॉट, फिर आएगा हैव, और फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. अच्छा, विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में वोंट भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आप विल नॉट को वोंट भी लिखती हैं तो दैट विल नॉट बी रॉन्ग, वो गलत नहीं होगा. ओके, लेट अस कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. बहुत ही सिंपल है. आपने हर किसी में विल हैव ऐड करना है और फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज़ ऑलरेडी गिवन इन द ब्रैकेट. और आई के साथ आप यूज़ कर सकती हैं, आई और वी के साथ आप शैल भी यूज़ कर सकती हैं. यू कैन नोट इट डाउन एंड कंप्लीट इट. जैसे है आई शैल हैव रिटन, नंबर 2 है. थर्ड में कंप्यूटर्स विल हैव टेकन ओवर. हाउ विल एजुकेशन हैव चेंज. अब आप देख सकती हैं ये क्वेश्चन जो है हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा विल. शैल वी हैव फाउंड अ वे टू फीड ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड. और इसी तरह से रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैं जिसको आपने जस्ट विल हैव से कंप्लीट करने हैं. ये है पेज 37 पे. देन कम टू पेज नंबर 38. 38 पे हमारी एक्सरसाइज सी है जो हम करेंगे. उसमें ये है कि चेंज द वर्ड्स रिटन इन रेड विद देयर होमोफोन्स. अब होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स आर दोज वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग. जिनकी आवाज़ बोलने में एक ही होती है बट उनकी स्पेलिंग्स जो हैं और मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. जैसे ये एग्जांपल है राइट. ये आपको मैंने एग्जांपल्स देने के लिए ये स्लाइड पे ये शो किया है. राइट, राइट, इस राइट का क्या मतलब है? यानी कि सही, ठीक होना कोई चीज़. और एक ये है राइट,
इस राइट का क्या मतलब है, यानी लिखना। अब आप दोनों की साउंड सेम है, राइट, बट मीनिंग्स आर डिफरेंट, स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, सो दे आर होमोफोन्स। इसी तरह बाकी भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसा ये मीट है, मीट मीन्स मिलना, और ये मीट है, इसका मतलब है गोश्त, मटन। फिर आप फॉर देख सकती हैं, फॉर यानी उसके लिए, और इस फोर का मतलब है यानी नंबर 4। अब साउंड जो है इनकी एक ही है, बट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट। सो ये एक्सरसाइज सी है ऑन पेज नंबर 38 इन माई बुक, यूनिट 5 की एंड पे ये एक्सरसाइजेज हैं। इसमें ये जो वर्ड्स रेड पे हैं, इनका आपने change the words written in red with their homophones to give the true meaning of the paragraph. ये आपने चेंज करने हैं, और ये मैंने आपको ये लिस्ट दी हुई है, इन वर्ड से आपने चेंज करने हैं। देयर वॉज वंस अ लिटिल बॉय, तो वो जो देयर था, इस पे ये वाला देयर लिखा हुआ है और बॉय ये लिखा हुआ है, बट यू हैव टू चेंज इट। ये लिस्ट है, आपने उनको कट करके ये सही वाले करेक्ट होमोफोन्स यूज करने हैं। Their boy stealing their would then throw, road, rays of the sun, saw him by feet, him beach, sea, air, boy, not। इन चीज़ों से आपने लिस्ट देख के अपनी बुक में होमोफोन्स चेंज कर लेने हैं। और योर होम असाइनमेंट इज़ दैट यू हैव टू लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स, ये जो आज हमने किए हैं, एंड रीड चैप्टर 3 and 4 ऑफ नॉवल। आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा जो होम असाइनमेंट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।